Good morning. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So next 10 days we will be discussing the IBPS clerk notification and its various clauses so that you are able to fill the form in a systematic fashion. Every year, thousands of candidates they commit error and then they have to revise their application, and some of them they face the difficulty at the time of PV. This can easily be avoided if we understand the notification properly and take all due precautions at the filling stage itself. So don't rush with your application. Wait for 10 days. We will cover and satisfy all your queries. So today I am taking very elementary query that is on the top of the notification. Vacancies for 2023-24. Now some of you are surprised, sir, we are running in 2022-23 financial year. Why it is mentioned vacancies for 2023-24? Is it an error? Is it an error? This is a question. IBPS is a board which undertakes the selection process, but they are not the organization that gives the employment. Whereas in case of State Bank is putting his own advertisements and also giving the employment. So procedure in State Bank and IBPS is different. IBPS carries out an exam for at present 11 banks. So whatever exam is being undertaken, the candidates will be allocated to these 11 banks. And the vacancies can go up, go down in these 11 banks. So a candidate who appears for IBPS gets a chance to get allotment in either of the bank. Now, as this process involves selection for large number of banks, so IBPS starts its process well before the time for futuristic vacancies. The futuristic vacancies are the vacancies that is going to arise in a bank during coming financial year, and in this case it is starting from 1st April 2024, 1st April 2023 to 31st March 2024. That means all the candidates those are appearing for this exam, their result will be declared at the beginning of financial year, that is 1st April 2023. And then their names will be given to different banks, and the banks as per their requirement will give the posting during the financial year up to 31st March 2024. They will draw a reserve list also. The reserve list will be valid till 31st March 2024. Why this is stated, and this will automatically expire. That means during the year, if some banks require the staff, they can requisite to IBPS, and IBPS may allot the candidates those are in reserve list during the financial year or at the end of financial year, and thereafter no allotments will be made, and that is the significance of the word that the reserve list will expire on 31st March 2024. That means the candidates those are placed in reserve list will get the allotment before 31st March 2024 or on 31st March 2024. That is the significance. And since these are futuristic vacancies, and that's why the present vacancies are only indicative. These are subject to change, and the history says that they go up.
because large number of banks, those have not completed their exercise for identification of vacancies. They will identify and report to IBPS. There will be banks, those have already reported the vacancies. They may require more staff. They will upgrade their requirement. Some banks may downgrade their requirement. But the ultimate culmination is there is always a uptrend in vacancies by the time result comes. And I am anticipating that the vacancies will be much above 13,000 this year. So we will be placing more videos on all the aspects of this notification, and after 10 days you should fill the form when I will tell you that we have covered all the aspects. Now the learning is complete. You can go ahead with the application. God bless you all. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. IBPS क्लर्क का नोटिफिकेशन आया. इसमें मैंने आपको ये सलाह दी है कि आपने जल्दबाजी नहीं करनी है फॉर्म भरने की. कम से कम 10 दिन आपको वेट करना है. उसका कारण क्या है? क्योंकि आप लोग नोटिफिकेशन को बिना पढ़े लोगों की सुनी सुनाई बात पे एप्लीकेशन डाल देते हैं. फिर उसमें गलती हो जाती है. फिर उसकी रेक्टिफिकेशन के लिए भागते हैं. फिर रेक्टिफिकेशन के लिए नई एप्लीकेशन भरनी पड़ती है जिसमें फ़ीस दोबारा देनी पड़ती है. कई बार वो गलती रह भी जाती है और डीवी के समय में दिक्कत आती है. और ऐसे भी कई इंस्टेंसेस हैं कि सेलेक्टेड कैंडिडेट ज्वाइन ही नहीं कर पाए क्योंकि एप्लीकेशन में इंफॉर्मेशन जो दी गई थी और जो डॉक्यूमेंट्स कैंडिडेट के पास थे वो मैचिंग नहीं थे. तो इसलिए जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए. ये चैनल राइट एडवाइस एट राइट टाइम है. यहाँ हम हर नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल्स डिस्कस करते हैं 8 से 10 दिन, क्योंकि नोटिफिकेशन के अंदर कई बार कुछ नई बातें होती हैं, कुछ बातें पुरानी भी होती हैं मगर कैंडिडेट्स को नहीं पता होती है. तो जब हम उसको डिस्कस कर लें और आपको नोटिफिकेशन समझ आ जाए फिर आपको अपनी एप्लीकेशन डालनी चाहिए. तो आज हम आपकी एक जो सबसे बड़ी चिंता है जो फर्स्ट पेज पे ही है कि सर ये क्यों लिखा हुआ है वैकेंसीज फॉर 2023-24. कहीं ये गलती तो नहीं है? अभी तो 2022-23 चल रहा है. IBPS की जो सिलेक्शन है और जो स्टेट बैंक की सिलेक्शन है वो दोनों में अंतर है. IBPS एक संस्था है जो डिफरेंट बैंक्स के लिए सिलेक्शन प्रोसीजर कर रहा है और इसलिए वो अपना जो प्रोसीजर है एडवांस में शुरू कर देते हैं. और इसलिए जो अगले साल मीन्स जो फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2023 को शुरू होगा और 31 मार्च 2024 को ख़त्म होगा, उसके लिए अभी से एग्ज़ाम लेना शुरू कर देगा. और जो उसके पास वैकेंसी 31 मार्च 2023 को होंगी उसके आधार पे वो 1 अप्रैल 2023 को रिजल्ट निकालेगा. जबकि स्टेट बैंक के अंदर क्योंकि वो करंट ईयर के लिए ही प्रोसेस करते हैं और वो खुद ही एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहे हैं IBPS से और खुद ही एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, तो वो प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर के लिए सिलेक्शन लेके चलते हैं और कोशिश करते हैं विद इन फाइनेंशियल ईयर ज्वाइनिंग भी दे दें. कई बार स्पिल ओवर भी हो जाता है पर उनकी कोशिश होती है 31 मार्च से पहले पहले आपको ज्वाइनिंग दे दें. तो ये दोनों सिलेक्शंस में ये अंतर है. हो सकता है स्टेट बैंक का प्रोसेस लेट शुरू हो पर ज्वाइनिंग पहले हो जाए और IBPS में जो ज्वाइनिंग होगी वो 1 अप्रैल 2023 के बाद होगी जो इसमें सेलेक्ट होंगे. तो पहली चीज़ तो हमें ये समझनी है ये फ्यूचरिस्टिक वैकेंसीज हैं. इसलिए ये वैकेंसीज जो दी गई हैं टेंटेटिव है, सब्जेक्ट टू चेंज है, क्योंकि काफ़ी बैंक अभी भी आइडेंटिफाई करेंगे वैकेंसीज. काफ़ियों ने जो अभी सोची हैं वैकेंसीज वो बदल जाएंगी क्योंकि जैसे जैसे मंथ बीतते जाएंगे उनकी रिक्वायरमेंट बदलती जाएगी. तो रियल स्थिति बनेगी 31 मार्च 2023 को और उसी के आधार पे 1 अप्रैल 2023 को रिजल्ट निकलेगा. तो मेरा ख्याल ये कंसेप्ट आपको समझ आ गया कि वैकेंसी क्यों बढ़ती घटती रहती हैं IBPS में. एक तो वो एक से अधिक बैंकों के लिए 11 बैंकों की सिलेक्शन कर रहे हैं. कोई बैंक बढ़ा देता है, कोई घटा देता है, कोई ऐड कर लेता है. तो इसलिए ये एक डायनेमिक है नंबर ऑफ वैकेंसी. पास्ट ट्रेंड यही कहता है कि जो वैकेंसीज फर्स्ट नोटिफिकेशन में आती हैं
और जो फाइनल सिलेक्शन होता है, फाइनल सिलेक्शन अधिक ही होता है, क्योंकि नॉर्मली काफ़ी बैंक नोटिफिकेशन की डेट तक अपनी आइडेंटिफिकेशन पूरी नहीं कर पाते हैं। दूसरी बात इसमें ये लिखी गई है कि जो रिजर्व लिस्ट है वो 31 मार्च 2024 को ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाएगी। तो जब ये रिजल्ट निकालते हैं 1 अप्रैल 2023 को जब निकालेंगे, तो साथ में एक रिजर्व लिस्ट निकालेंगे जो 10% ऑफ उस समय की डिक्लेयर्ड वैकेंसी के इक्विवेलेंट होगी। अब इस रिजर्व लिस्ट से जिन बैंकों को इमरजेंट रिक्वायरमेंट है नेक्स्ट ईयर के अंदर, वो रिक्विजिशन भेज सकते हैं IBPS को, और IBPS उस रिजर्व लिस्ट की अलॉटमेंट कर सकती है 31 मार्च 2024 तक। मीन्स 31 मार्च 2024 से पहले भी कर सकती है और 31 मार्च 2024 को भी कर सकती है। पर यदि कोई रिक्विजिशन 31 मार्च 2024 तक नहीं आती है तो ये लिस्ट ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाएगी। जो रिजर्व लिस्ट में लोग हैं उनका हक ख़त्म हो जाएगा और नेक्स्ट ईयर का प्रोसेस जो 2024-25 का है वो स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर वाइज प्रोसेस है, तो कहीं ना कहीं एक प्रोसीजर को एंड करेंगे तभी नेक्स्ट प्रोसीजर स्टार्ट होगा। तो मेरी सलाह ये है कि जो ये हम सीरीज चला रहे हैं IBPS क्लर्क नोटिफिकेशन से संबंधित सारी वीडियोस आप देखेंगे, इसकी प्लेलिस्ट भी मैंने बना दी है, और सारी चीज़ों को समझने के बाद शांत मन से 10 दिन बाद जब मैं आपको इंडिकेशन दूंगा कि अब आप फॉर्म भर सकते हैं, तब आप फॉर्म भरेंगे। जल्दबाजी मत करिएगा। हर साल काफ़ी लोग गलती करते हैं और बाद में पछताते हैं, फिर वो कहते हैं सर मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, अब मैं इसको चेंज कर लूँ या नहीं। और इंक का पूरा ध्यान रखें, अगर वो ब्लैक इंक कह रहे हैं इसकी सिग्निफिकेंस है। कई लोगों को लगता है हमने ब्लू इंक यूज़ कर ली थी फिर भी कुछ नहीं हुआ, वो एक अलग बात है, क्योंकि ब्लैक इंक का इम्प्रेशन डार्क होता है, ब्लू इंक का ब्लर होने का चांस होता है, और जिन लोगों के सिग्नेचर ब्लर हो जाते हैं और जिन लोगों के सिग्नेचर नज़र नहीं आते हैं उनकी एप्लीकेशनें रिजेक्ट भी होती हैं। ज़रूरी नहीं है प्री स्टेज पे ही हो जाए, दिक्कतें DV स्टेज पे भी आ सकती है, किसी भी स्टेज पे आ सकती है। इसलिए जो बातें बताई गई हैं उसको फॉलो करने में ही भलाई होती है। गॉड ब्लेस यू ऑल।